Good morning, dear students. Welcome back. In our last class, we have discussed about the various principles, not exactly the principles, the various techniques which are given by F.W. Taylor. All the principles, there are 4 principles we have discussed, and today in this session we are going to discuss about the various techniques of F.W. Taylor. Totally there are 8 techniques, out of which till we had covered the first 3 techniques. So the first technique is functional foremanship. So I hope all of you go through that video. Who is a gang boss? Any idea who is a gang boss? So gang boss is the person who assemble all the tools and techniques which are required by the workers so that while entering into their job they can immediately start their work. Exactly like this, who is instruction card clerk? Any idea that instruction card clerk coming under which department? Planning or production? Instruction card clerk comes under planning department. ठीक है? तो उसी तरह कौन होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क is the person who gives instruction how to use the machines, what is the standard time, what are the tools and techniques are used for doing a job, etc. given by instruction card clerk. So similarly, the second technique is standardization and simplification. So what is standardization? Standardization means setting standard for various products. Okay, setting standard for each product, each raw material, each machine, each worker, etc. We have to set the quality of the product in standardization. उसी तरह simplification में क्या होता है? Simplification means determining the limited number of product variety, that may be size, grade, type, quality, etc. उसका जो वेराइटी होता है उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं, सो दैट क्या होता है बेटर कंट्रोल हो सकता है एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, सो दैट द प्रोडक्टिविटी और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल. व्हाट इज दैट इज fetish study. What do you mean by fetish? Fetish means rest pauses. Here Taylor suggested that we have to give rest to the workers while they are working. So the time or the rest pauses which is given to the workers, that should be decided scientifically, not arbitrarily. So how? There are 3 points discussed by F.W. Taylor: frequency of the rest pauses, duration of the rest pauses, numbers of rest pauses to be given to the workers. तो ये कैसे होता है बोल के टेलर ने बोला है कि वहां पे क्या होगा, एक आदमी जब काम करता है तब हम लोग उसका टाइम नोट डाउन करेंगे कि वो कितना बजे से काम स्टार्ट किया, फिर उसका जब एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज होने लगेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको रेस्ट देंगे. तो कितने टाइम के बाद उसका एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर कितने टाइम के रेस्ट के बाद वो फिर से अपने काम पे जाएगा तो वो भी नोट डाउन करेंगे. तभी जाके क्या होगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द रेस्ट पॉजेस टू बी गिवन टू द वर्कर्स. सो in this topic we are going to discuss about the next techniques, that is the 4th one. Technique of scientific management, that is the 4th one, is your method study. So व्हाट इज द मेथड स्टडी? मेथड का मतलब क्या आ रहा है दिमाग में? मेथड स्टडी जो बोले हैं टेलर ने, तो यहाँ पे जो मेथड स्टडी बोला गया है, व्हाट इज दैट मीनिंग? मेथड मीनिंग क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क. जब भी हम लोग कोई काम करेंगे, वो काम करने के लिए जनरल क्या होता है, वी हैव द डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस. आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स वी हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, और वी कैन से वी हैव टू चूज द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. That is called method study. तो मेथड स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, we have to find out the best method for a work. तो एक काम करने के लिए क्या होता है उसका बेस्ट मेथड, वी हैव टू फाइंड आउट दैट. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एक मेथड में कर लो, या फिर मैनेजमेंट जो होता है या फिर मैनेजर जो होता है, मैनेजर शुड नॉट डिसाइड द मेथड आर्बिट्रेरीली. दैट मेथड शुड बी डिसाइडेड साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू टेलर. So Taylor was given the opinion that whenever we are choosing the method to do a particular work, that method should be
फाइंड आउट बाय अप्लाइंग द साइंटिफिकल एनालिसिस मेथड। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, सपोज मान लो कुछ नहीं, इतना ही है इसका मीनिंग। जो मेथड स्टडी है ये जरा इतना सा ही है, बात को समझो कि मतलब मेथड स्टडी में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल मुझे भुवनेश्वर जाना है, तो भुवनेश्वर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं बाइक में जा सकता हूँ, मैं कार में जा सकता हूँ, या फिर मैं ट्रेन में जा सकता हूँ, बस में जा सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आई हैव टू चूज द बेस्ट वन अमंग देम। तो वो क्या होता है, मेरे ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसके ऊपर, मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा, तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल हो सकता है, सपोज मान लो हमारा एक गारमेंट शॉप है, तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग शॉप जो है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े सिलाते हैं। तो कपड़े सिलाने के लिए, वेविंग करने के लिए दो तरह का मेथड हो सकते हैं। एक है बाय यूजिंग द मशीन्स, सेकंड वन इज हैंड स्टिच। तो हैंड में सिला सकते हैं, या फिर हम लोग मशीन को यूज कर सकते हैं। सो हियर इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू चूज द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग अ जॉब। तो वो लोग क्या करेंगे, बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। तो उनके पास अगर पैसा है तो वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके मशीन लाएंगे, मशीन में स्टिच करेंगे। पैसा नहीं है तो एम्प्लॉय से ही करवाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो मेथड स्टडी का मीनिंग इतना ही है, यू हैव टू नो व्हाट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मींस चूजिंग द बेस्ट मेथड अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक, that is, so the next one is the next principle, that is so the fifth number principle, that is time study. As we discussed about the method study, method study में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। मेथड मतलब we have to find out the best method for doing a work. That method is observed by scientific analysis. Okay, so here the thing is time study. सो इन टाइम स्टडी में क्या होता है, टेलर ने बोला है कि 4 टेक्निक्स है, 4 टेक्निक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टाइम को फिक्स करेंगे। कि देखो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी में जैसे मेथड यूज हो रहा है, उसी तरह टाइम स्टडी में क्या यूज होगा, टाइम यूज होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब, ये फिक्स होगा टाइम स्टडी में। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब टेलर ने बोला है फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू डिटरमाइन the standard time for a work. Okay, then the second one, deciding the standard target. Then third one, determine the number of workers required, and the fourth one, okay. So in time study we have to remember these 4 points. The first point is determine the standard time for a work. We have to determine what is the standard time for doing a particular work. Then the second one, deciding the standard target for each worker. Then third one, determining the number of workers required to carry out the work. And the last one is categorizing the worker on the basis of their efficiency. So let us understand one by one, because this is a very important question to all of you. So here in this first point, Taylor focused that we have to fix the standard time. So what will be the standard time for doing a job? It is the responsibility of the manager to decide the standard time for doing a particular work. तो standard time क्या होता है, मैनेजर के दिमाग में जो आ गया वही स्टैंडर्ड टाइम होगा, और that should be decided scientifically.
तो यहाँ पे टेलर ने क्या बोला है, द स्टैंडर्ड टाइम शुड नॉट बी डिसाइडेड आर्बिटरीली बाय द मैनेजर, इट शुड बी डिसाइडेड बाय साइंटिफिकल एनालिसिस और साइंटिफिक इंक्वायरी। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेलर ने क्या बोला है, हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम, पहले क्या होगा, हम लोग एक एवरेज वर्कर को लेंगे, एक एवरेज वर्कर को लेंगे, एवरेज वर्कर को एक पर्टिकुलर काम दे देंगे, ठीक है। सो वी हैव टू असाइन ए वर्क टू एन एवरेज वर्कर, नॉट एन एफिशिएंट वर्कर, नॉट इनएफिशिएंट वर्कर, वी हैव टू असाइन द वर्क टू एन average worker and noted down the time, or we have to observe the work by carrying a stopwatch in our hand. Okay, so एक एवरेज वर्कर को पहले काम दे दिए, फिर वो क्या करेगा, काम को करेगा, कितनी टाइम करेगा, 100 टाइम्स करेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्कर एक काम को कितनी बार करेगा, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स तक वो 100 टाइम्स करेगा। फिर क्या होगा, वो जो 100 टाइम्स में उसका कितना टाइम लग रहा है एक काम को करने के लिए, जैसे कि मतलब फर्स्ट टाइम में कितना टाइम लगेगा, सेकंड टाइम में कितना टाइम लगेगा, थर्ड टाइम में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो कितना टाइम तक नोट डाउन करेंगे, टोटल 100 टाइम्स तक नोट डाउन करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, फर्स्ट वी हैव टू असाइन ए वर्क टू एन एवरेज वर्कर and we have to carry a stopwatch in our hand. We have to observe the average worker while he is performing the work for 100 times. So while he performing the work 100 times, then we have to record the time spent on that particular work. Okay, that time is noted down. On that basis, we have to determine the standard time required for that job. तो उस तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एक काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक काम करने के लिए पहली बार में वो 1 घंटा लिया, दूसरी बार में 55 मिनट्स, तीसरी बार में 120 मिनट्स, चौथी बार में 1 आवर 5 मिनट्स। तो उस तरह से वो जो डिफरेंट टाइम्स ले लिया, उसी तरह 100 टाइम्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 100 टाइम का जो एवरेज निकलेगा, एवरेज को बेस करके हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गया पहला वाला काम, टाइम स्टडी फाइंड आउट करने के लिए टेलर ने बोला है कि फर्स्ट काम क्या है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। देन द सेकंड वन, डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टारगेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टारगेट को हम लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट में इंपोर्टेंट क्या हो गया, वी हैव टू फिक्स द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज मान लो एक 1 वर्क इज इक्वल टू 1 आवर, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो गया। एक काम करने के लिए 1 घंटा चाहिए, उस तरह से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, स्टैंडर्ड टारगेट डिसाइड करेंगे। टारगेट किसके लिए, वर्कर्स के लिए, कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा। कैसे डिसाइड होगा, किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे हम लोग वर्क डिसाइड करेंगे। सो हियर टेलर फोकस्ड दैट डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टारगेट on which basis, on the basis of standard time। एक आदमी, एक एम्प्लॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में कितना काम करेगा, 1 महीने में उसका टारगेट कितना होगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करेंगे, ठीक है। देन द थर्ड वन, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। सो यहाँ पे फिर टेलर ने क्या बोला है, वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द जॉब। हमारा जो टारगेट है, सपोज मान लो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हो गया 1000 यूनिट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हो गया 1000 यूनिट। एक एम्प्लॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 8 घंटे का काम करेगा, तो 8 घंटे में 8 प्रोडक्ट होगा। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना एम्प्लॉय चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। सो हियर द थर्ड वन इज वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क। ओके, अंडरस्टैंड। देन द फोर्थ वन इज कैटेगराइजिंग द वर्कर। जैसे कि यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना एम्प्लॉय चाहिए, 200 एम्प्लॉइज चाहिए। तो ये मतलब मैंने लेट दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड हो गया 200, स्टैंडर्ड टाइम हो गया 1 वर्क फॉर 1 आवर। उसी तरह स्टैंडर्ड टारगेट एक दिन में 8 आवर में 8 प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीज फाइनल हो गया. Then the last one is very important because we have to categorize the workers on the basis of their efficiency. Efficiency के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्कर्स को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 3 तरह से डिवाइड हो सकता है. जैसे कि पहला वाला स्टैंडर्ड वर्कर, second one efficient worker, then the third one inefficient worker. तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी. तो हियर वी आर डिवाइडिंग द वर्कर्स 3 टाइप्स. दैट वन, फर्स्ट वन इज योर स्टैंडर्ड वर्कर, और वी कैन से द एवरेज वर्कर्स, देन एफिशिएंट वर्कर, देन इनएफिशिएंट वर्कर. तो स्टैंडर्ड वर्कर किसको बोलेंगे, हु कंप्लीटेड टास्क इन स्टैंडर्ड टाइम. सो स्टैंडर्ड वर्कर या फिर एवरेज वर्कर किसको बोलेंगे, द वर्कर हु कंप्लीटेड द टास्क इन स्टैंडर्ड टाइम, ही इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वर्कर और एवरेज वर्कर. देन एफिशिएंट वर्कर किसको बोलेंगे, एफिशिएंट वर्कर मींस हु कंप्लीटेड द टास्क इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम से कम में जो काम कर देगा उसको हम लोग एफिशिएंट बोलेंगे. सो कंप्लीट टास्क इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम. So efficient worker कौन होगा, the worker who completed the task in less than the standard time, he is called efficient worker. उसका opposite क्या होगा, inefficient worker. The worker who does not completed the task in standard time is called inefficient worker. So here it is the last one, that is categorizing the worker on the basis of their efficiency. We can divide the workers on 3 bases, either standard worker or average worker, efficient, inefficient. एवरेज वर्कर क्या होगा, हु कंप्लीटेड द टास्क इन राइट टाइम, ही इज कॉल्ड एवरेज वर्कर. एफिशिएंट वर्कर मींस कंप्लीटेड द टास्क इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट. इनएफिशिएंट मींस द वर्कर्स हु डज नॉट कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम. वो लोग काम नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड टाइम में, तो वो होंगे इनएफिशिएंट वर्कर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम स्टडी. सो हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स और 2 टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग ए जॉब, वो हो गया मेथड स्टडी. टाइम स्टडी में क्या होगा, टेलर ने सजेस्ट किया है 4 चीजों को हम लोग फोकस में देखेंगे. तो पहला वाला हो गया फर्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड टाइम. वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम. कैसे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा, एक एवरेज वर्कर को लाएंगे, एक पर्टिकुलर काम को 100 टाइम्स करवाएंगे, तो उसका कितना टाइम लग रहा है 100 टाइम्स करने के लिए, उसका जो एवरेज टाइम निकलेगा वो हो गया स्टैंडर्ड टाइम. देन इन सेकंड पॉइंट डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टारगेट. स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करने के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करेंगे कि एक एम्प्लॉय कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक महीने में कितना टारगेट करेगा, तो वो हो गया स्टैंडर्ड टारगेट. डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव करने के लिए कितना एम्प्लॉयज चाहिए वो डिसाइड करेंगे. Then fourth one, categorizing the worker on the basis of their efficiency. Efficiency, it can be divided into 3 types, either average worker, efficient worker, inefficient worker. Average workers means who completed the task in right time. Average worker. Efficient means completed the task in less than the right time, that is called efficient worker. Inefficient, who does not complete the task in right time, they are called inefficient worker. Okay, thank you guys. If you have any doubt, then you can call me. Thank you. This is